لفظ نہیں یا انکار صرف ایک چھوٹا سا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی زندگی میں بہت طاقتور کردار ادا کرتا ہے۔ اکثر ہم نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں کہ رشتے بننے یا بگڑنے اور بعض اوقات ذاتی فیصلے صرف اس ایک لفظ پر منحصر ہوتے ہیں۔ جب آپ نہیں کہتے ہیں تو اس کی ادائیگی آپ کی شخصیت، آپ کا کردار، آپ کی علمیت، آپ کی قدریں اور آپ کے ماحول کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ لفظ اتنا اہم ہے کہ صحیح استعمال سے انسان مضبوط اور خود اعتماد بن سکتا ہے، اور غلط استعمال یا غیر مناسب موقع پر کہنے سے تعلقات میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ صرف لفظ کا انتخاب کافی نہیں ہوتا، بلکہ لہجہ اور باڈی لینگویج بھی معنی پیدا کرنے میں 50% سے زیادہ کردار ادا کرتی ہیں۔ اسی طرح جب زندگی میں کوئی ایسی درخواست آئے جو آپ کے لیے مناسب نہ ہو، تو ضروری ہے کہ آپ لفظ، لہجہ اور باڈی لینگویج تینوں کو ساتھ لے کر نہیں کہیں۔ صرف لفظ کہنا کافی نہیں، بلکہ احترام، شائستگی اور واضح حدود کے ساتھ کہنا ضروری ہے، تاکہ نہ آپ پر گلٹ آئے اور نہ تعلقات خراب ہوں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی دوست یا کولیگ بار بار آپ سے کہے کہ پہلے میرا کام کر دو، حالانکہ آپ کے پاس اپنا بہت امپورٹنٹ اور ضروری کام موجود ہے جسے آپ چھوڑ نہیں سکتے، تو آپ انہیں بڑے آرام سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوری، ابھی میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس ایک بہت امپورٹنٹ کام موجود ہے، لیکن انشاءاللہ میں بعد میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ اس جواب میں نہ صرف آپ اپنی حد قائم رکھتے ہیں، بلکہ تعلقات بھی محفوظ رکھتے ہیں، اور سامنے والا آپ کی ایمانداری اور احترام کو سمجھتا ہے۔ یہ لفظ، اس کی ادائیگی اور طریقہ نہ صرف آپ کی خود اعتمادی اور سکون کو بڑھاتا ہے، بلکہ آپ کے فیصلوں کو بھی واضح اور مستحکم بناتا ہے۔ جب آپ یہ ہنر سیکھ لیتے ہیں تو زندگی میں آہستہ آہستہ بڑی بڑی تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ زیادہ پر اعتماد ہوتے ہیں، آپ کا ذہنی سٹریس کم ہو جاتا ہے، اور تعلقات مضبوط اور متوازن ہو جاتے ہیں۔ یہی سبق ہے جو مانوئل جے اسمتھ کی کتاب When I say no, I feel guilty ہمیں دیتی ہے، یعنی زندگی کو دوسروں کی توقعات کے بوجھ تلے گزارنے کے بجائے اپنی آواز، اپنی حدود اور اپنے فیصلوں کے ساتھ جینا۔ اس مسلسل ہاں کہنے کی عادت کے پیچھے ایک بڑی نفسیاتی کمزوری چھپی ہوتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں ایک نہایت اہم ہنر سکھاتی ہے جسے assertiveness کہا جاتا ہے، یعنی ایسا اعتماد جس میں انسان نہ تو دوسروں پر اپنی مرضی مسلط کرتا ہے اور نہ ہی اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے، بلکہ احترام اور وضاحت کے ساتھ اپنی بات کہنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ مصنف کے مطابق بہت سے لوگ اپنی زندگی میں اس لیے پریشان رہتے ہیں کیونکہ وہ دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش میں اپنی ضروریات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ آپ پورا دن کام کر کے تھکے ہوئے گھر آئے ہیں، اور آپ کا دوست آپ کو فون کر کے کہتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ شاپنگ پر جانا چاہتا ہے۔ آپ کے دل میں فوراً خیال آتا ہے کہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، لیکن آپ یہ سوچ کر کہ اگر میں منع کر دوں گا تو وہ برا مان جائے گا، ہاں کر دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ شاپنگ پر تو چلے جائیں گے، مگر اندر ہی اندر تھکن اور جھنجھلاہٹ محسوس کرتے رہیں گے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ سے ناراض ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنی اصل ضرورت کو کیوں نظر انداز کیا، اس نے کیوں نہ نہیں کہا۔ مانوئل جے اسمتھ کے مطابق اس مسئلے کی اصل جڑ ہماری پرورش اور معاشرتی تربیت میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ بچپن ہی سے ہم یہ سیکھتے رہتے ہیں کہ دوسروں کو ناراض کرنا غلط بات ہے، بزرگوں کی ہر بات ماننا بہت ضروری ہے، اور دوسروں کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بظاہر یہ سب باتیں اچھی اور اخلاقی لگتی ہیں، اور ہیں بھی، اور حقیقت میں معاشرے کو بہتر بنانے میں اپنا کردار بھی ادا کرتی ہیں۔ مگر مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب یہی اصول انسان کی ذاتی آزادی، اس کی اپنی خواہشات اور اس کے ذہنی سکون پر حاوی ہونے لگتے ہیں۔ جب انسان ہر وقت دوسروں کی خوشی کو
मद्द नज़र रखता है और अपनी ज़रूरियात को नज़रअंदाज करने लगता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो अंदर से दबाव, थकन और बेइत्मीनानी महसूस करने लगता है। यही वजह है कि मुसन्निफ समझाते हैं कि दूसरों का एहतराम और मदद करना यकीनन अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ इंसान के लिए ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि उसकी अपनी ज़िंदगी, उसका वक्त, उसकी तवानाई भी कीमती है। अपनी हुदूद को पहचानने का मतलब ये है कि इंसान ये वाज़े तौर पर जान ले कि वो किस हद तक दूसरों के लिए कुछ कर सकता है और किस मुकाम पर उसे रुक जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स बार बार आपसे ऐसे काम करवाता है जिनकी वजह से आपका अपना काम मुतासिर हो रहा है या आप ज़हनी तौर पर थकने लगते हैं, तो इस मौके पर यह समझना बहुत ज़रूरी है कि अब आपको नरमी और एहतराम के साथ नहीं कह देना चाहिए। इसी तरह अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों में खुद मुख्तारी बरकरार रखने का मतलब ये है कि इंसान अपने अहम फैसले सिर्फ इस बुनियाद पर न करे कि लोग क्या कहेंगे या कौन नाराज़ हो जाएगा, बल्कि वो ये देखे कि उसके लिए क्या दुरुस्त और मुनासिब है। जब इंसान अपनी हुदूद को समझ लेता है और अपनी तरजीहात के मुताबिक फ़ैसले करना शुरू कर देता है, तो वो न सिर्फ ज़्यादा पुरसुकून ज़िंदगी गुजारता है, बल्कि उसके ताल्लुकात भी ज़्यादा साफ और मुतवाज़िन हो जाते हैं, क्योंकि लोग आहिस्ता आहिस्ता उसकी हुदूद और उसके फ़ैसलों का एहतराम करना सीख लेते हैं। मैनुअल जे स्मिथ अपनी किताब व्हेन आई से नो आई फील गिल्टी में वजाहत करते हैं कि बाज़ औक़ात इंसान नरमी और एहतराम के साथ नहीं कहता है, मगर फिर भी सामने वाला उसे अपनी बेइज्जती समझ लेता है। ऐसे मौके पर यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान अपने जज्बात और रद्द अमल का खुद जिम्मेदार होता है। अगर आपने शाइस्तगी और वजाहत के साथ अपनी बात कह दी है, तो दूसरे के नाराज़ होने की जिम्मेदारी आप पर नहीं आती। मिसाल के तौर पर, अगर कोई दोस्त बार बार आपसे पैसे उधार मांगता है और आप इस बार साफ अंदाज में कह देते हैं कि माजरत, इस वक्त मैं पैसे नहीं दे सकता, तो मुमकिन है वो उसे अपनी तौहीन समझे, लेकिन असल मसला आपके जवाब में नहीं बल्कि उसकी तवक्कुआत में होता है। मुसन्निफ के मुताबिक ऐसे हालात में बेहतर तरीका यह है कि इंसान सुकून और मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपनी बात पर कायम रहे और बहस में पड़ने के बजाय सादा अंदाज में वही मौक़िफ़ बार बार दोहराता रहे। वक्त के साथ लोग समझ जाते हैं कि आपकी नहीं बदतमीजी नहीं बल्कि एक वाज़े हद है। इसी तनाजुर में मुसन्निफ ये भी बताते हैं कि अगर कोई शख्स आपकी हर हाँ को तो कबूल करे लेकिन एक बावकार नहीं बर्दाश्त न कर सके, तो इस ताल्लुक़ की नौयत पर गौर करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सेहतमंद रिश्ता वही होता है जिसमें दोनों तरफ एक दूसरे के वक्त, जज्बात और हुदूद का एहतराम हो। अगर किसी ताल्लुक़ में सिर्फ यही तवक्को हो कि आप हमेशा मानते रहें, तो वो रिश्ता अक्सर ज़रूरत या फ़ायदे पर कायम होता है, जबकि हकीकी और मजबूत ताल्लुक़ वही है जिसमें इंसान की हाँ के साथ साथ उसकी नहीं का भी एहतराम किया जाए। इसलिए मैनुअल जे स्मिथ ने अपनी किताब में 3 किस्म के रवैयों का जिक्र किया है। पहला रवैया पैसिव होता है, जिसमें इंसान हमेशा दूसरों की बात मान लेता है और अपनी ख्वाहिशात को नज़रअंदाज कर देता है। ऐसे लोग बज़ाहिर बहुत नरम मिजाज नज़र आते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो दबाव और नाराज़गी महसूस करते रहते हैं। दूसरा रवैया एग्रेसिव होता है, जिसमें इंसान अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों पर दबाव डालता है और अक्सर सख्त लहजे में बात करता है। ऐसे लोग बज़ाहिर मजबूत दिखाई देते हैं, मगर हकीकत में वो ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरा और सबसे मुतवाज़िन रवैया असर्टिव होता है, जिसमें इंसान एहतराम के साथ अपनी बात वाज़े करता है और दूसरों के हुकूक का भी ख्याल रखता है। किताब में एक दिलचस्प तकनीक भी बयान की गई है जिसे ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक कहा जाता है। इस तकनीक का मतलब ये है कि अगर कोई शख्स बार बार आप पर दबाव डाले, तो आप सुकून से
वही बात दोहराते रहें जो आपने पहले कही थी। मिसाल के तौर पर, अगर कोई सेल्समैन आपको कोई चीज खरीदने पर मजबूर करने की कोशिश करे, तो आप बार बार सादा से अंदाज में कह सकते हैं, नहीं शुक्रिया, मुझे इसकी जरूरत नहीं। जब आप सुकून और एतमाद के साथ अपनी बात दोहराते हैं, तो आखिरकार सामने वाला दबाव डालना छोड़ देता है। मुसन्निफ इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमें अपनी गलतियों को कबूल करने से घबराना नहीं चाहिए। बाज लोग इसलिए नहीं कहते क्योंकि उन्हें डर होता है कि शायद उनका फैसला गलत हो जाए, लेकिन हकीकत ये है कि हर इंसान को गलती करने का भी हक हासिल है। अगर हम हर वक्त दूसरों की तवक्कुआत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करते रहेंगे, तो हम तो अपनी असल शख्सियत ही खो बैठेंगे। जिंदगी में हकीकी सुकून तब ही आता है जब इंसान अपने फैसले खुद करने की हिम्मत पैदा करता है। इस किताब का एक और अहम पैगाम ये है कि अपनी हुदूद यानी बाउंड्रीज वाज़े करनी शुरू करें। जब इंसान अपनी हुदूद तय कर लेता है, तो दूसरों के लिए भी आसान हो जाता है और वो भी इन हुदूद का एहतराम करते हैं। और अगर आप हमेशा हर दरख्वास्त पर हाँ कहते हैं, तो लोग ये समझ लेते हैं कि आप हर वक्त दस्तयाब हैं। लेकिन जब आप एहतराम के साथ कभी कभार नहीं कहना शुरू करते हैं, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता आपकी हुदूद को समझने लगते हैं। इस तरह न सिर्फ आपकी ज़िंदगी आसान होती है, बल्कि आपके ताल्लुकात भी ज़्यादा सेहतमंद हो जाते हैं। दोस्तों, इस किताब का असल मकसद ये नहीं कि इंसान ज़िद्दी या खुद गर्ज बन जाए, बल्कि मकसद सिर्फ इतना सा है कि इंसान मुतवाज़िन रहे। हमें दूसरों की मदद भी करनी चाहिए, मगर अपनी सेहत, अपना वक्त और ज़हनी सुकून की कीमत पर नहीं। इसलिए अगली बार जब आप किसी ऐसी दरख्वास्त का सामना करें जो आपके लिए मुनासिब न हो, तो याद रखिए कि एक सादा, साफ और एहतराम से कहा गया नहीं आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाएगा। जब आप इस हुनर को सीख लेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाएगी। आप खुद को ज़्यादा पुरएतमाद महसूस करेंगे, आपके फैसले ज़्यादा वाज़े हो जाएंगे और आपका ज़हनी दबाव, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आपका ज़हनी दबाव कम हो जाएगा।